Hello students, so welcome to our lecture number 2. In this lecture we will discuss regarding our chapter light, which is available in class 10 CBSE physics. So basically in yesterday class, that is our lecture number 1, we have discussed common terminology available in optics and what is optics, what are the different branches, etc. So now proceed to the lecture number 2. एक्चुअली प्रीवियस क्लास थिला हमर फर्स्ट क्लास तो बहुत भल रेस्पॉन्स आसथिला स्टूडेंट मानकर पास आउट स्टूडेंट होंदु किंबा प्रेजेंट स्टूडेंट बहुत भल रेस्पॉन्स देजन समस्ते थैंक यू सो मच एंड गिव योर वैल्यूएबल सजेशन आल्सो ओके लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक so here first thing we will discuss reflection of light. So in case of optics, there are different branches. That is our geometrical optics, wave optics, and quantum optics. And this is under geometrical optics. It has already been discussed. So what is reflection of light? Remember, it is the property of light by virtue of which light is completely come back to the same medium. Or in a very simple format, we can say bouncing back of light after incidenting on a reflecting surface. In today's session, we will discuss what is reflecting surface, incident ray, reflected ray, point of incidence, everything. That is also the common terminology in case of reflection. So it is the property of light by virtue of which light is completely come back to the same medium after incidenting on a reflecting surface. After incidenting on a reflecting surface. Okay. So what is reflecting surface? Remember, the surface on which reflection takes place, that is called our reflecting surface. And out of all type of reflecting surface, we will discuss silver metal surface is the best reflector of light. So surface on which reflection takes place is called reflecting surface. Simultaneously, all of you note it down. And silver metal surface is the best reflector of light. Achha. So now tell, in our daily life, which one is the common reflecting surface? That is our plane mirror or looking glass. So in our daily life, we can add this point. In our daily life, common reflecting surface is plane mirror or looking glass. This is our common reflecting surface. I think it is visible to all of you.
and audio is clear. Next, and remember this reflection of light, it is of two types. One is your regular reflection, another one is irregular reflection. So it is of two types, that is regular reflection and irregular reflection. So these are the two types of reflection of light. That depends upon the reflecting surface, nature of reflecting surface only. Okay. So this is about our first slide. What is reflection of light? Introductory idea. Already we have finished. Next. Now you take the screenshot actually. So shall we proceed? Okay. Next thing. Before entering into the types of reflection, let's start the laws of reflection. It is very simple actually. For all of you, laws of reflection is very simple. Laws of reflection. In case of reflection, we know there are two laws. One is your first law and second law. So what is first law? Incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence to the reflecting surface all lie in same plane. And what is the second law? In case of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. That means we can say angle I, that is angle I is equals to angle R. Okay. So let's allow me to explain. Wait. ये पिक्चर सबको दिखाई दे रहा है, देखो. ओके. तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है हमारा? इंसिडेंट रे. व्हाट इज इंसिडेंट रे? ये देखो, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो द रे व्हिच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे होगा वो. सॉरी, यहाँ पे एज पर दिस फिगर दिस वन इज द इंसिडेंट रे. द रे अप्रोचिंग टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द रे कमिंग आउट फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देखो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रहा है किसको? रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंड ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे किसके ऊपर? विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. तो परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं. देखो, they are situated in one plane and don't think that the plane is reflecting surface. That is the misconception. यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ना, देखो सेंटेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस all lie in the same plane and this plane is called
and this plane is called plane of incidence or plane of reflection. वेट इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सही तरीके से। बस अभी हो गया। तो इसमें देखो मेरे मैं शो कर रहा हूँ 3 पेन, देखो दिखाई दे रहा है तुमको। ओके, सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। यस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अभी एक मिरर में कंसीडर कर रहा हूं, सपोज यहां पे है, देखो ये कौन सा प्लेन, सपोज इसको कंसीडर करो, फिर से मैं बोल रहा हूं, देखो इसको ले जाओ एक्स एक्सिस, लेट अस कंसीडर दिस पेन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। ये ऊपर वाला पेन ना, ये जेड एक्सिस हो गया। तो ये देखो ये प्लेन मिरर, सपोज मेरा मोबाइल का सरफेस प्लेन मिरर, तो ये प्लेन मिरर भी कौन सा प्लेन पे है, दिस इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन पे भी है, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे मिरर, तो मिरर इज लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन। ओके, तो अभी इंसिडेंट रे से आ रहा है, देखो ये सपोज रिफ्लेक्टेड रे एंड ये होगा तुम्हारा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूं यस, ये सपोज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये तुम्हारा नॉर्मल, एंड ये सपोज इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो इंसिडेंट रे, reflected ray and normal at the point of incidence all lie in same plane, but that plane is not xy plane, that plane is xz plane, ये वाला प्लेन होगा। so xz plane को इस एग्जांपल के हिसाब से, as per this example, this xz plane is our plane of travel or plane of incidence or plane of reflection. I think it is clear to all of you. So many students are thinking that all lie in the same plane and that all lie in same plane, that plane is reflecting surface. That is completely wrong. I think it is clear. Okay, so this is about our laws of reflection, one of the interesting part of this topic. Okay, next we will discuss about the common terminology. Okay, now see the figure. I think the picture is visible. दिखाई दे रहा है कैमरा में? Yes. अदरवाइज जनरली इसको हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यस, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ऐसे मार्क कर दोगे, वन इज योर रिफ्लेक्टिंग साइड, अनदर वन इज पॉलिश्ड साइड। ये तो क्लास 7 से तुमको पता है एक्चुअली। यस, तो इसमें देखो, तो मैं नाम दे रहा हूं उसको नेमिंग के हिसाब से, दिस इज एक्स, इस पॉइंट को मैं ले रहा हूं ओ पॉइंट, एंड दिस इज वाई, दिस इज आई ओ, this is O, this point is R, this is N. So as per this figure, ये फिगर के हिसाब से, तो व्हाट इज एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई को हम लोग क्या मानेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है बोलो, सरफेस ऑन व्हिच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, सरफेस ऑन व्हिच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट आईओ, आईओ इज आवर इंसिडेंट रे। व्हाट इज इंसिडेंट रे, रे अप्रोचिंग टुवर्ड्स द, व्हाट इज रे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड,
What is ray? The straight line path followed by light energy in a transparent homogeneous medium. Okay, in lecture number 1 we have discussed ray approaching towards reflecting surface. That is termed as your इंसिडेंट रे. सेकेंड टर्म के बारे में आइडिया हो गया. नेक्स्ट यहां पे दिख रहा है ओ पॉइंट. पॉइंट ओ इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. यस. सो व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, इट इज ए पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ही एक पॉइंट अवेलेबल है. इट इज ए पॉइंट on reflecting surface at which incident ray falls or strikes. That is our point of incidence. नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? O से लेकर R तक. ओ आर. ओ आर क्या है? देखो, ओ आर इज अवर रिफ्लेक्टेड रे. रे कमिंग आउट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रे कमिंग आउट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस. After reflection, this is our reflected ray. नेक्स्ट टर्म क्या है? देखो, O से लेकर N. O N इज कॉल्ड नॉर्मल. थोड़ी देर से पहले हम लोग डिस्कशन किए थे. O N इज आवर नॉर्मल. एंड इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस to the reflecting surface. Yes, ON is our normal. Then एंगल के बारे में डिस्कशन होगा अभी. एंगल ION. पिक्चर पर ठीक से देखो, एंगल ION. ION, ये इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल I. दैट इज एंगल I. एंगल ऑफ इंसिडेंस. प्योरली बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं. ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे. नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे. एंड व्हाट इज RON? ये एंगल को हम लोग क्या मानेंगे? देखो, एंगल RON, दैट इज एंगल R. इट इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. Yes, so this is about terms related to reflection of light on plane surface. Yes, हो गया सब कुछ. और एक चीज बेहतरीन पॉइंट अवेलेबल है. देखो, all these things are available in book. Another things also available, that is your angle between incident ray and reflecting surface. इसको हम लोग मानेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है तुमको, बस ये एंगल को हम लोग मानेंगे GI. इसका मीनिंग क्या है? ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस. सिमिलरली एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस एंगल इज कॉल्ड ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आई थिंक इट इज क्लियर. यस. तो GI एंड GR,
GI and GR. Angle GI and angle GR. That is glance angle of incidence and glance angle of reflection respectively. हो गया सारा का सारा टर्मिनोलॉजी. यस. एंड एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यस. तो ये फिगर पे देखो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये पॉइंट तो हमको पता है एक्चुअली. अच्छा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये तो 90 डिग्री. दैट मीन्स एंगल जी आई प्लस आई कितना होगा 90 डिग्री, एंड एंगल आर प्लस जी आर दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री. सो वी कैन राइट जी आर प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये चीज समझ में आया है नहीं? तो आज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर which implies we can write GI is equal to GR. Glance angle of incidence is equal to glance angle of reflection. This is also true. Okay, I think we have covered all the terms available in this reflection. Yes. So now take the screenshot. तो क्लास रे कंटिन्यूटी रहा दरकार. आउ तुम माने आउ ठीक से पॉइंट आउट करो, गिव योर सजेशन, कमेंट माध्यम जणाम, सब सब सजेशन दियो, सो दैट कौन इंप्रूवेशन दरकार आ कौन इंप्रूव करा दरकार हमें करि परिबा. यस, योर फुल कोऑपरेशन इज नीडेड. यस. सो नेक्स्ट. अच्छा, मैं सोच रहा हूँ पेज शो कर था बस. ओके, तो नेक्स्ट इज एक बेसिक कॉन्सेप्ट दैट इज योर रिफ्लेक्टेंस. ये चीज देखो, रिफ्लेक्टेंस. इसको हम लोग क्यों स्टडी करेंगे? अच्छा, मैं तुमको बोल रहा हूँ एक सिल्वर सरफेस अवेलेबल है, सपोज एक सिल्वर सरफेस, एंड दूसरा क्या है कोल, कोल सरफेस. सिल्वर सरफेस को ऑब्जर्व करोगे तो क्या शो कर रहा है तुमको, देखो ब्राइटर. यस, ब्राइट. बट कोल सरफेस डल. ये सर नो, ऐसा क्यों हो रहा है एक्चुअली? ऐसा क्यों हो रहा है? रूम के अंदर ये दोनों सरफेस को हम लोग ऑब्जर्व करने से एक बहुत ब्राइट शो कर रहा है, दूसरा वाला ब्राइट शो नहीं कर रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टेंस. का मीनिंग क्या है देखो, सपोज ये तुम्हारा सिल्वर सरफेस एंड ये तुम्हारा कोल सरफेस, एंड यहाँ पे मैं एक लाइट सोर्स ऑन किया हूं. देखो ये सपोज एक सोर्स ऑफ लाइट, तो इसके ऊपर भी लाइट एनर्जी फॉल हो रहा है, इसके ऊपर भी लाइट एनर्जी फॉल हो रहा है. यस, सपोज 100% लाइट एनर्जी से फॉल हो रहा है. कितना इंसिडेंट हो रहा है? 100%. और 100 नंबर ऑफ रेज, सपोज लेट अस कंसीडर 100 नंबर ऑफ रेज आर फॉलिंग ऑन ईच सरफेस. ये तुम्हारा सिल्वर सरफेस, ये तुम्हारा कोल सरफेस. अच्छा, इसके बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा. तो यहाँ पे 100 नंबर ऑफ रेज फॉल हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन होने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद इसमें तुमको पता चलेगा मोर देन 95 रेज रिफ्लेक्ट हो रहा है. इसमें नियरली 4 नंबर ऑफ रेज सपोज रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो कहने का मतलब क्या है? रिफ्लेक्टेंस इज वन ऑफ द रेशियो. यस. तो किसके बीच में रेशियो एक्चुअली? किसके बीच में रेशियो? इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेंस. देखो इधर, तो रिफ्लेक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रिफ्लेक्टेंस, it is defined as the ratio between amount of light reflected from a surface
to the amount of light incident on that surface. Amount of light incident on that surface. I think it is clear. And remember, reflectance is always expressed in percentage. So it is always expressed in percentage. तो इसी हिसाब से सिल्वर सरफेस का रिफ्लेक्टेंस हम लोग नोट आउट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 95%. तो फॉर रिफ्लेक्टेंस फॉर सिल्वर सरफेस ये कितना होगा? दिस इज 95% नियरली. एंड फॉर कोल सरफेस का आंसर हम लोग लिखेंगे कितना? 4% होगा. यस. तो रिफ्लेक्टेंस का जो वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो सरफेस उतना ही ब्राइट दिखाई देगा. यस. ओके. तो दिस इज अबाउट वन important term, that is your additional term, that is reflectance. yes. देखो कौन सा पॉइंट में मैं रिफ्लेक्टेड रे बोल रहा हूँ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट रे बट एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो इसमें जो भी वर्ड चेंज कर रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करो ठीक से. यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस. यस. so now you take the screenshot. ये कंप्लीट हो गया. now we will discuss types of reflection. yes, that is our regular reflection and irregular reflection. पाठ जदि ठीक से systematically try to learn everything systematically, otherwise life total joke है जो. yes. तो suppose तुमको कहा जीवो देखो गोटे भलो एग्जांपल दोछि. हॉस्पिटल में जाइए. yes. तो हॉस्पिटल रे ताले सब जगह कौन लिखा है? प्लस सिंबल एमती दिया है. yes or no? yes. एटा कॉमन जिनस. तो हॉस्पिटल देखिए आम हॉस्पिटल रे सब जगह कौन थाए? प्लस सिंबल थाए. yes. अच्छा जो तुम देखिए पाठ ठीक से न पढ़ी कि न जानी आइडिया न तुम मानकर तुम कौन चिंता कर इनसाइड हॉस्पिटल व्हाई प्लस साइन इज अवेलेबल एवरीवेयर. यस. तो कौन कह एमती जो मैंने पाठ पढ़े नी. यस. दोज हु आर नॉट एक्वेंटेड विथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो तांको निजे आंसर तैयारी कर दे. केमती देखो. So now this plus sign consists of two things, two lines. One is your horizontal line, दूसरा क्या है बोलो? दूसरा vertical line. yes. तो ये देखो ये लैंडिंग फॉर्मेट में है. ये जो लैंडिंग फॉर्मेट में है ये पेशेंट नहीं. आउ ये कौन अच्छी? ये स्टैंडिंग फॉर्मेट रे अच्छी. जे स्टैंडिंग फॉर्मेट रे थिबो से के डॉक्टर. यस. आर हॉस्पिटल चलची का पई? पेशेंट एंड डॉक्टर. ये दुटा कॉम्बिनेशन. यस. तो पाठ न पढ़ले ये सब आंसर बाहर. पाठ पढ़ले किसी परफेक्ट आंसर बाहर. एबे तुम सर्च करी कमेंट करो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस सिंबल. ठीक अछि. यस. दिस लाइन इज इन को फॉर्मेट? द लैंडिंग फॉर्मेट. दिस इज स्टैंडिंग फॉर्मेट. जे लैंडिंग फॉर्मेट से कोन? पेशेंट. जे स्टैंडिंग फॉर्मेट रे अछि से डॉक्टर. ठीक ठीक. ओके. सो नाउ कम टू types of reflection. yes. One is our types of reflection. Keep heading types of reflection. yes. First is regular reflection. now see one thing. I am going to draw a diagram. रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए ना तो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो क्या होना चाहिए? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी स्मूथ. तो स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मींस हमें कंसीडर कर परिबा. नाउ वी कैन कंसीडर प्लेन मिरर as smooth reflecting surface. yes. और पॉलिश्ड मेटल सरफेस
ऐसे ही ले पाएंगे हम लोग। यस, एंड यहाँ पे दिस इज योर पॉलिश्ड साइड एंड ऊपर वाला इसका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग साइड हो गया। दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। नाउ ये क्या है देखो, दीज आर इंसिडेंट रेज। इसके ऊपर मैं एक पैरेलल बीम इंसिडेंट कर रहा हूं, किसके ऊपर, रेगुलर सरफेस के ऊपर एक पैरेलल बीम इंसिडेंट कर रहा हूं। बीम क्या है पता है तुमको, यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड नंबर ऑफ रेज और ग्रुप ऑफ रेज इन ए फिक्स्ड और पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, नाउ रिफ्लेक्शन के बाद तुमको क्या दिखाई देगा, देखो ऐसे दिखाई देगा। रिफ्लेक्शन के बाद ना तुमको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, दीज आर द रिफ्लेक्टेड रे। डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट, दीज आर रिफ्लेक्टेड। तो इसको मैं ले रहा हूं, ये जो तुम्हारा सरफेस, ये कौन सा सरफेस, ये तुम्हारा रेगुलर सरफेस, रेगुलर और पॉलिश्ड, और इसका नाम क्या है, स्मूथ सरफेस। अच्छा, दीज आर द इंसिडेंट रेज एंड दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज। अच्छा, और एक चीज अवेलेबल है, क्या है, देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर में तो कर रहा हूं, दीज आर द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम लोग क्या ड्रा कर पाएंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। दीज आर द नॉर्मल, नॉर्मल आर द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यस, बस। तो दीज आर द, you can mention their name, these are the normal। तो ये है तुम्हारा रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है देखो, तो व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट strike the polished or regular surface after reflection, all the reflected rays are also parallel to each other। okay, such type of reflection is called regular reflection। finished। तो इसमें वही पॉइंट को हम लोग ऐड कर देंगे अभी। तो पहला पॉइंट हम लोग ये मेंशन करेंगे, इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट incident on a regular surface after reflection, all the reflected rays are also parallel to each other। so this is happening in case of regular reflection। very good। next पॉइंट हम लोग क्या ऐड कर पाएंगे बोलो, it is also called specular reflection। इसका अदर नेम specular reflection, it is also called specular reflection। नेक्स्ट क्या है, for this nature of reflecting surface must be smooth और शाइनी और पॉलिश्ड और रेगुलर, जो भी वर्ड यूज करो। एंड और एक पॉइंट दिखाई दे रहा है हमको,
नॉर्मल्स ड्रॉन एट ऑल द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो इसको अच्छे से समझो, इसके बाद इरेगुलर रिफ्लेक्शन को भी सही तरीके से समझ पाओगे। एंड फोर्थ पॉइंट में हम लोग ये भी अटैच कर पाएंगे अभी, नॉर्मल्स ड्रॉन एट ऑल द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर also parallel to each other। एंड और एक चीज, जो टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, देखो सेटिस्फाई हो रहा है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हियर आल्सो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंड इन केस ऑफ ईच इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल lie in the same plane, so we can mention laws of reflection holds good in this case also। and for example में हम लोग ये भी मेंशन कर पाएंगे, एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ लुकिंग ग्लास और प्लेन मिरर। यस, दिस इज अबाउट आवर रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसका भी जो भी पॉइंट मैं लिखा हूं ना, उसको अपोजिट में देखो हम लोग मेंशन करेंगे किसके बारे में, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये तुम्हारा रेगुलर और पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग ड्रा करेंगे, देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नेचर स्मूथ नहीं होगा। यस, तो इरेगुलर सरफेस, एक इरेगुलर सरफेस में ऐसे ड्रा कर रहा हूं, बस ये सपोज इरेगुलर सरफेस दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें भी देखो एक पैरेलल बीम अभी ऐसा इंसिडेंट होगा। इसमें भी बीम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रेज इन ए फिक्स्ड और पर्टिकुलर डायरेक्शन। I think you all are getting my point. So whatever I am drawing now, these are these all are what? Incident rays. हो गया, पैरेलल बीम इंसिडेंट हुआ। अच्छा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, देखो ठीक से देखो सर। सपोज ये वाला देखो, ये जो सरफेस, ये जो छोटा सा हिस्सा मैं ड्रा कर रहा हूँ, देखो छोटा सा हिस्सा, एक प्लेन शो कर रहा है बस। तो इसमें मैं नॉर्मल ड्रा करने से क्या होगा, ये होगा तुम्हारा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बस ये डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एट दिस पॉइंट। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा, तो ये होगा तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे ऐसा। यस, ओके। तो लाइक दिस ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल ड्रा करने से क्या होगा, देखो नॉर्मल ड्रा करने से कुछ ना कुछ डिफरेंस तुमको दिखाई देगा। देखो एंड यहाँ पे ये तुम्हारा नॉर्मल, एंड ये पॉइंट पे इसको कंसिडर करो नॉर्मल, बस। समहाउ डायग्राम अभी समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। देखो
तो दीज आर इंसिडेंट रेज, आई डॉट आर में लिख रहा हूँ शॉर्ट में, एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, एंड दीज आर द नॉर्मल, ये डॉटेड लाइंस ऑफ नॉर्मल। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है बोलो, सेम इंसिडेंट रे क्या है, इन केस ऑफ इंसिडेंट रे ऑल द रेज आर पैरेलल, दैट मींस एक पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रहा है किसके ऊपर, इरेगुलर सरफेस के ऊपर। तो व्हेन, इसमें पॉइंट 1 पे हम लोग इसका मीनिंग अभी नोट करेंगे, इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट incident on an irregular surface after reflection, all the reflected rays scattered in all directions, all reflected rays starts to scatter in all directions. So this is happening in case of irregular reflection. और क्या पॉइंट हो सकता है बोलो, तो नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस क्या होगा, इरेगुलर, नॉन शाइनी, ओके, नॉन पॉलिश्ड, वैसा। एंड इट्स अदर नेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, उसमें क्या था, इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन दैट इज अदरवाइज कॉल्ड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, it is also called diffused reflection. I think it is clear. Okay. Next, और एक पॉइंट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, हाँ, नॉर्मल्स, नॉर्मल्स drawn at all the point of incidence are not parallel to each other, उसमें पैरेलल था, तो नॉर्मल at all point of incidence are not parallel to each other. Then, अच्छा मुझे बोलो, इन दिस केस, अच्छा रिफ्लेक्टेड का डायरेक्शन में मेंशन नहीं किया हूँ, ये एक रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नेक्स्ट ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो नेक्स्ट, अच्छा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई करेगा ही नहीं बोलो, इन दिस केस आल्सो रिमेंबर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड, ओके। तो किसी भी पेयर को ले जाओ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल lie in the same plane, and here angle I is equal to angle R, here angle I is equal to angle R, in this case of angle I equal to angle R, बस। तो इसी हिसाब से यहाँ पे हम लोग को मेंशन करना चाहिए, laws of reflection holds good in this case also, laws of reflection holds good in this case also. I think it is clear. Yes. And for example क्या है बोलो, अरे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एग्जांपल बहुत सिंपल, the things which are available in our surrounding all are generally what, irregular surfaces. Yes, so we are able to see our nature in our surrounding, that is because of diffused reflection. So example क्या है, we are able to see our surrounding due to irregular reflection. Yes, this is about your what, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी कंप्लीटेड हो गया, टर्मिनोलॉजी भी कंप्लीट हो गया। देखो 2 ही क्लास में हम लोग मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल थिंग को कवर कर चुके हैं। यस बस, अच्छा पेन सिलेक्ट नहीं किया,
दो क्लास में हम लोग मैक्सिमम चीज कंप्लीट कर चुके हैं। तो ले जाओ स्क्रीनशॉट। ओके, यस। तो इसके बाद हम लोग अभी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे, दैट इज योर डेविएशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर। डेविएशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर। ओके, मुझे पानी पीने दो थोड़ा। यस, तो क्या क्या हम लोग कवर कर चुके हैं देखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डेविएशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर। देखो इधर, ये है सपोज तुम्हारा प्लेन मिरर एंड इसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये क्या है, दिस इज योर पॉलिश्ड साइड। यस, एंड यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे हो गया। देखो, एंड यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, ये है तुम्हारा नॉर्मल बस। एंड इसमें और एक चीज देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये वाला चीज यू कैन से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसको ऐसे मार्क कर देंगे हम लोग, वेट, डॉटेड फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ तुमको। वेरी गुड। देखो, सो इन दिस फिगर, ये फिगर को देखो अच्छे से, दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल हो गया। देन दिस इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है तुम्हारा, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। एंड ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, देखो इंसिडेंट रे वांट्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ, बट यहाँ पे उसका ऑब्स्टैकल खड़ा है। देखो ऑब्स्टैकल कौन है इधर, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। यस, तो ये लाइन को हम लोग क्या मानेंगे, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इसको हम लोग लिखेंगे रिफ्लेक्टेड। तो एक्चुअली फिगर क्या बोल रहा है, देखो इंसिडेंट रे चाहिए कौन, सीधा एमती आसो। यस, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एमती न जाए से निजर ओरिजिनल रास्ता एति भटकी गला। देखो ओरिजिनल रास्ता केते डेविएट हैला, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर, तर ओरिजिनल पाथ रु केते डेविएट है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो इन दिस फिगर, तो यहाँ पे ये जो ओरिजिनल रास्ते से वो इतना एंगल भटक गया, देखो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। उसको मैं मान रहा हूँ डेल, जो सिंबल दिखाई दे रहा है तुमको जैसे डेल। यस, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वेरी सिंपल। तो फ्रॉम दिस फिगर ज्योमेट्री अप्लाई करो, देखो ये टोटल एंगल कितना होगा 180। दैट मीन्स वी कैन राइट इन दिस केस, तो फ्रॉम फिगर देखो
एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो डेल का आंसर क्या होगा? डेल का वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस आई माइनस आर, और इसको हम लोग ये भी लिख पाएंगे 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर। तो आज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख पाएंगे 180 माइनस 2i, और वी कैन राइट इट एज 180 डिग्री माइनस 2i। दिस इज द फॉर्मूला डेविएशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर। वेरी सिंपल, कंप्लीट हो गया। देखो दिस इज अबाउट योर डेविएशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर। यस, ओके। और एक चीज देखो, इसका प्रूफ देखो, ये तो बस सिंपल सा प्रूफ। और एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, उसके बाद ध्यान में रखो। सपोज यहाँ पे 2 मिरर्स अवेलेबल है। यस, ऐसा 2 मिरर अवेलेबल है। ये तुम्हारा मिरर 1, ये तुम्हारा मिरर 2, ये मिरर 1 एंड दिस इज मिरर 2। ये दोनों के बीच में एंगल कितना? सपोज थीटा। ओके, both the plane mirrors are inclined with each other at an angle theta. Both the plane mirrors are inclined with each other at an angle theta. So in this case total angle of deviation क्या होगा? So when two plane mirrors are inclined to each other at an angle theta, then total deviation कितना होगा? 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। यस, क्या प्रूव जरूरी नहीं है इस क्लास के लिए, तो बस कीप दिस थिंग इन माइंड। ये तुम्हारा याद रह गया। देखो ये जो डेविएशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज का सेशन का टोटल कॉन्सेप्ट और जो भी कंटेंट कंप्लीट हो गया। तो न्यूमेरिकल खत्म करने के बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। अभी देखो थोड़ा कैमरा को देख रहा हूँ, रुको। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या? यस, दिखाई दे। A ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 30 degree. So deviation produced by the ray is dash. A ray of light incident on a plane mirror at an angle of 30 degree. That means given क्या है इसमें? In this case given I is equal to 30 degree and angle of deviation पूछा है वो। तो डेल का आंसर क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 2i। That means 180 minus 2 into 30. That is 180 degree minus 60 degree. The final answer is 120 degree is your angle of deviation. Clear? This is your answer. Okay. Next, come to next question हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या पूछ रहा है? देखो, लाइट फॉल्स ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू इंसिडेंट रे। ये लैंग्वेज को ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे इज नॉर्मल टू इंसिडेंट रे। अच्छा, डायग्राम को देखो थोड़ा। ये तुम्हारा सपोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो एज पर द क्वेश्चन तो क्या बोल रहे हैं? ये तुम्हारा क्या इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल वो बोल रहा है 90 डिग्री। दैट मीन्स एज पर द क्वेश्चन ये एंगल 90 डिग्री होगा। यस, तो नॉर्मल कौन है? देखो दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यस, सो एंगल, ये एंगल क्या होगा? दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज आर। तो गिवन दे रखा है हमको एंगल आई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, आई प्लस आर के बदले में हम लोग आई भी लिख सकते हैं 90, दैट मीन्स 2i इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो आई का आंसर क्या होगा 90/2 दैट इज 45 डिग्री। यस, वेरी सिंपल। दिस इज अबाउट द, अच्छा डायरेक्शन दे दो, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल इंसिडेंट रे। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इतना ही बस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। जो भी तुमको बोलना चाहिए तुमको, ये तो लाइव सेशन नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लासेस मैं अपलोड कर रहा हूँ। यस, तो जो भी तुमको सजेशन देना है कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हो। तो ट्राई टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।